हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनियन बजट 2022-2023 and I will be covering thoroughly. I'll be discussing the budget thoroughly because this video and my purpose is for exam, law related exam. So purpose of discussing this budget is basically to law related exams, whether it is judicial service, judicial service or law entrance exams. As you all know that in the law entrance exam, we are or in the judicial service exam, in both the exams, like this is of two-stage exam mainly, that is a PT and mains, MCQ and descriptive. And in this one, it's all about MCQ in the law entrance, whether it is a CLAT or DU, etc. So in the PCSJ, HJS, APO, in all exams, so you are having the questions relating to budget, right? And part and parcel basic terms which is used in this is related to economics. So it is important one, a very important segment is this for our exam, for uh, PT or mains both. So therefore we will be discussing, even it is helpful for essay writing, while you are writing on essay, while you are writing essay on like economics and something related to economic. So here you have to cover this, it would be helpful as well. So now as you know that as we have to cover this discussion for mains, so we will be covering thoroughly, discussing thoroughly. So it will take time. So what I'll be doing, I'll be discussing this budget in two session, in two videos, right? And after this completion of these two video, I after that I will be covering this budget, the highlights of the budget, or in brief by PPT, through PPT, which I already done it. So uh, that would be in the brief, and that would be covering only the highlights. So after these two videos I'll be covering that. So now let's start with, this is basically a budget which has been uh, presented by our FM finance minister, and present finance minister of India यूनियन गवर्नमेंट इज निर्मला सीतारमन जी। और ये बजट, इस साल का जो बजट है, ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, ये इसका 7वां बजट है जहां तक मुझे ध्यान में है, 7th ये बजट है। और आपको पता है 2017 के बाद रेलवे बजट, रेलवे बजट और जो जनरल बजट है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जनरल बजट, इसको मर्ज करके सिंगल बजट बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं इस सिंगल बजट को जनरल बजट। तो आप देखते हो दोनों चीजें शामिल है, रेलवे के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्लानिंग से सारी चीजें जो है आपको इसी बजट में मिल जाएगी, देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल बजट speech which has been presented by our FM here, I mean to say finance minister. If I'll be using the word FM, it is for finance minister. So now today it was presented by our finance minister, and this budget is presented in the budget session. अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, यू ऑल नो दैट, अलग अलग सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, तो बजट सेशन, और बजट सेशन में आज इसे प्रेजेंट किया गया। सो सबसे पहले जो इनके स्टार्टिंग वर्ड्स थे, इट वाज रिगार्डिंग कि जो पेंडेमिक में लोगों की जान चली गई और उनके गुड हेल्थ के लिए जो है, और अच्छे इकोनॉमी के लिए जो है, एक ये स्टार्टिंग लाइन रिमार्क्स दिया गया इंट्रोडक्शन में। और जो की पॉइंट्स है इसमें, वो सबसे पहला ये था जो बिगिनिंग ऑफ दिस बजट है, इट इज रिगार्डिंग प्रोजेक्शन, कि हमारा ग्रोथ क्या होगा। ग्रोथ, अगर आप, इफ यू रिमेंबर 31 जैन 31 जैन में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, और इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया उसमें
8 टू 8.5% ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में जो जीडीपी एक्सपेक्ट किया है कि 2022-23 में जो हमारा 22-23 में जो जीडीपी जो होगा, जो ग्रोथ होगा हमारा, वो 9.2% के आसपास एस्टिमेट किया गया है। दिस इज कॉल्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ, 9.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9.2% ये है कि हमारा जीडीपी इस लेवल से, इस परसेंटेज से आगे बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छा है इस कोविड पैंडेमिक में अगर ऐसा होता है। सो लिटरली वेरी गुड, अगर ये प्रोजेक्शन है तो इट इज वेरी गुड। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ हाइलाइटर, ये हाईलाइट करना है, ये समझना है आपको, ये हमारा टेक अवे है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। Now, we'll be covering some lines as well because we have to cover this for subjective mains exam as well. So thoroughly we'll be discussing, and while we are discussing, so we have to cover the lines and we have to like highlight as well कि क्या क्या इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि 9.2% ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है। फर्स्ट थिंग वाज दिस। नाउ इसका जो है, मैं अगर आप चाहो तो मैं इसका जो है पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, हाईएस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। दुनिया की जो लार्ज इकोनॉमीज है उसमें एफएम का कहना है कि ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। हाउ मच? 9.2%। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ देन कमिंग टू थर्ड वन, थर्ड पैराग्राफ, एंड एक कुछ चीजों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि किस प्रकार से टफ टाइम में भी हमने कैसे इस ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ाया है, और इसमें लोगों को धन्यवाद दिया है, सबका प्रयास वर्ड यूज किया गया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। आई रिकॉग्नाइज वी आर इन द मिस्ट ऑफ एन ओमिक्रॉन वेव, बिल्कुल सही है, थर्ड वेव जो है हमारा ओमिक्रॉन का विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री विद हाई इंसिडेंस बट माइल्डर सिम्टम्स। मामले बहुत ज्यादा है बट बहुत माइल्डर सिम्टम्स उसके लक्षण है ओमिक्रॉन के। सो डेथ जो है, फैटल मतलब डेथ जो है वो बहुत कम है। ये अच्छी बात है हमारे लिए इस कोविड-19 के थर्ड वेव में, ओमिक्रॉन में। फर्दर द स्पीड एंड कवरेज और वैक्सीनेशन कैंपेन हैज हेल्प्ड ग्रेटली। और इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक वैक्सीनेशन का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, उसकी वजह से जो है ये मामले कम है, मतलब मौत का रेशियो जो डेथ है वो कम है। With the accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges। और हमारे पिछले 2 सालों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है बहुत काम किया है, और इसकी वजह से जो है हम एक अच्छे सिचुएशन में है जो हम कवर कर रहे हैं ऐसे टफ टाइम को। आई एम कॉन्फिडेंट विद द सबका प्रयास, इस सबका इसमें जो है एवरीबडी इज जस्ट टेकिंग, एक एफर्ट जो सबके द्वारा लगाया जा रहा है, और सबके प्रयास से हम क्या करेंगे, इस जर्नी को और इस ग्रोथ को, हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। ये जो है स्टार्टिंग रिमार्क्स जो है रिमार्क्स हैं एफएम के। नाउ इसमें अभी एक नया जो इसमें कुछ आया है, आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हो कि 75 साल की वजह से जो है इस आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है अमृत काल। अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और इसका 100 साल जो होगा वो 2047 में होगा। तो अभी आप देखोगे कि एक अमृत काल 25 साल का और इंतजार बताया है कि अभी जो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें, इसका जो आउटपुट हमें कब देखने को मिलेगा, 25 साल के बाद, जब इंडिया अपनी आजादी के 100 साल को मना रहा होगा। सो ऑनरेबल स्पीकर, वी आर, ये लाइंस हैं हमारे एफएम के, वी आर मेकिंग आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स जो है हम
अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल, ठीक है। एंड हैव एंटर्ड इनटू अमृत काल, और आजादी के अमृत महोत्सव से, ये की लाइन याद रखना, आजादी का अमृत महोत्सव 25 ईयर्स में हम मना रहे हैं, 75 साल होने, आजादी के 75 साल में पर होने पर। अब हम, इन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए 40, हम 76 ईयर्स में 2022 में आ गए, तो हम 76 ईयर में जा रहे हैं। तो अगला, अब हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, एक नए काल में। जैसे सुना होगा आपने कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, जो है अलग अलग युग, उसी प्रकार से अब हम अमृत काल में, एक अलग काल में जा रहे हैं, ऐसा हमारे एफएम का कहना है। एक नया ये कॉन्सेप्ट सगुफा कह सकते हो आप। द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया 100, मतलब जो है अगला 25 साल जो आज हम प्लान कर रहे हैं, और ये उन 2047 तक का जो काल है, 2022 से, मतलब ये एक कौन सा काल है, अमृत काल। ये एक न्यू पॉइंट हम सबके सामने आया, अमृत काल। सरकार ने एक नया सगुफा कुछ लाया है एक अमृत काल का, बट बजट वी आर डिस्कसिंग, सो वी हैव टू कवर इट, राइट। कि अब हम अमृत काल में, आजादी के अमृत महोत्सव से अमृत काल में चले गए हैं, ठीक है। और इसमें कहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस हैड सेट आउट द विजन फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100, कि जब 100 साल आजादी के, 100 साल भारत के हो जाएगा, तब जो है भारत कैसा होगा, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सारी चीजों के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो है, पीएम का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है इन्होंने इस बात को अपने स्पीच में कहा है, बजट स्पीच में। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 चीजों पे सबसे ज्यादा जो है फोकस किया गया है। अगर आप देखोगे तो अभी हम आएंगे तो इसमें देखेंगे कि भाई आगे कि बहुत सारी चीजों पे, और मेनली 4 इसमें चीज है जिसपे सरकार का इस बजट में फोकस है। उससे पहले अमृत काल के लिए सरकार ने क्या अपना एक विजन रखा है कि हमें 2047 तक 2047 तक क्या अचीव करना है। बाय अचीविंग सर्टेन गोल्स ड्यूरिंग द अमृत काल, आवर गवर्नमेंट एम्स टू अटेन द विजन। व्हाट आर दोस, कि ये क्या क्या अचीव करना है नाउ। सो इन दिस वन, व्हाट इज द विजन टू अचीव नाउ? Complementing macroeconomic level growth, focus with the microeconomic level all inclusive welfare focus। मतलब जो जो आर्थिक स्थिति है, मैक्रो लेवल ग्रोथ को लेते हुए माइक्रो इकोनॉमिक लेवल को फोकस करना है, और बड़े छोटे मंझोले सारे जो है लेवल पे हमें जो है क्या करना है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव वेलफेयर को जो है हमें फोकस करना है, कि सबका इसमें वेलफेयर, सबका कल्याण हो हर एक लेवल पे। इसका जो है फोकस रखा गया अमृत काल के लिए। ये अमृत काल कब कम आएगा, ये कंप्लीट होगा 2047 में, तो अभी से अगला 25 साल। प्रोमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी है सरकार का जो है विजन, है डिजिटल इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे, फिनटेक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे जो है, कि जो लेन देन से सारी चीजें, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए, और उससे संबंधित जो है डेवलपमेंट हो, मतलब उससे संबंधित विकास और नौकरी वगैरह मिल सके। एनर्जी ट्रांजिशन, कि हम जो अभी तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है बेस्ड है, वहां से हम रिन्यूएबल पे चले जाएं, सोलर एक्सेट्रा पे हम ज्यादा मूव करें। और क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट जो पर्यावरण के लिए, मौसम के लिए, उस पर कार्य किया जाए। देन relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment helping to crowd in private investment। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो एक ऐसा साइकिल बनाए कि जब हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें, सरकारी इन्वेस्टमेंट हो, तो इसके साथ साथ लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करें और इसमें लोग जुड़े और उनको हेल्प मिल सके। तो दीज आर द विजन फॉर अमृत काल। ये दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस के लिए अगर आता है कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमृत काल गिवन बाय बजट 2022-2023। so these are the objectives, so you have to keep it in mind, that could be the part। और इससे इवन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है, yes that can be the there, so you have to cover this now। then
मूविंग अहेड इन दिस, अमृतकाल के बारे में जो बताया जा रहा है सारी चीजें हैं। Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and marginalized. Measures have included programs that have provided housing, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, एक्सेस टू वाटर। 2014 से जो एनडीए की सरकार है, तो एफएम हमारी कह रही है कि हमने क्या कोशिश किया है, हमने कोशिश ये की है कि जितने भी लोग जो हाशिए पे है, जो गरीब है, जो पुअर है, उनके लिए हमने क्या किया है, कोशिश की है हाउसिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कुकिंग गैस के लिए। तो आपको पता है कि भाई सरकार का प्लान था 2022 तक गांव के हर घर तक जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंचाना। और इसके बाद प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना जो पहले था जिसको चेंज किया गया। इसके बाद आप कुकिंग गैस के लिए सरकार का जो योजना है, इसमें फ्री गैस सिलेंडर और स्टोव दिया जाता था। इसके बाद जल के लिए, वाटर की हर घर तक जो है, हर व्यक्ति तक, हर घर तक जो है पानी पहुंच सके, ये बेसिक बुनियादी चीजें हैं। और उज्ज्वला योजना, दिस वाज कुकिंग गैस के लिए उज्ज्वला योजना। सो दीज ऑल प्रोग्राम्स वर रन बाय दिस गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट। और 2014 से जो है सरकार इसके लिए प्रयासरत है, ये हमारे एफएम का कहना है। We also have programs for ensuring financial inclusion एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी सरकार के द्वारा किसानों को, गरीबों को जो है डीबीटी स्कीम चलाया गया। सरकार का ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब सरकार जिसको बहुत उस पर रिलाई कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब बैंकिंग के साथ साथ छोटे छोटे लेवल पे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में फिनटेक कंपनी को, और बाहर से मतलब बैंक पे ज्यादा बर्डन ना हो और लोग ट्रांजेक्शन कर सके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी, उस पे भी सरकार का बहुत जोर है। We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle class. और सरकार, हमारी जो सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये मिडिल क्लास को भी जो है अपने ध्यान में रखे हुए और उसके लिए भी एक सिस्टम बना रही है कि वो भी फल फूल सके, बढ़ सके, डेवलप हो सके। A vast and wide section which is populated across various middle income brackets। और ये जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो है ये मिडिल ब्रैकेट में आता है, और इसके लिए सरकार ने जो है एक बहुत बड़े लेवल पे, ये है बहुत, मतलब एक बड़ा चंक है ये मिडिल क्लास का। तो उनके लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज जो है पैदा करना, ये सरकार का एक थॉट है और इसके लिए सरकार ने काम किया है। नाउ देन कमिंग टू दिस वन, this budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over the अमृत काल for नेक्स्ट 25 ईयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो बजट है, आप थोड़ा सा इसको बोलोगे सर कि ये कैसा है या किस प्रकार से है। तो अभी जो हमारा प्लान है, उन्होंने कहा है कि ये जो बजट हम बना रहे हैं, आज का जो बजट है, इसमें हमने अगले 25 ईयर्स को ध्यान में रखा है। और एक प्रकार से इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट वो 25 ईयर्स के बाद आएगा, ऐसा सरकार का कहना है। द बजट सिक्स टू ले द फाउंडेशन, मतलब अगले 25 साल के लिए, उसके लिए आज हम उसका आधार बना रहे हैं, फाउंडेशन रख रहे हैं। एंड गिव अ ब्लूप्रिंट, और उसका एक जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं उस इकोनॉमी का कि आज से 25 साल पैसे कैसा होगा 25 साल के बाद। ओवर द अमृत काल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, फ्रॉम इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100। आज अब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम 25 ईयर्स में आजादी, और 100 साल के लिए हमने प्लान किया है, जब उसे अमृत काल कहा गया है। इट कंटिन्यूज टू बिल्ड ऑन द विजन ड्रॉन इन द बजट 2021-2022, और उसी विजन को हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने 2021-22 में देखा था बजट में, एफएम का कहना है। इट्स फंडामेंटल टेनेट्स, जो सिद्धांत है, भौतिक सिद्धांत क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, इंक्लूडेड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, fiscal position, reflect the government's intent, strengths and challenges. This continue to guide us। ये सारी चीजें इसको शामिल किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी और जो सिद्धांत सरकार का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी को, और जो सरकार का इंटेंट है, सोच है, वो सबको दिखे, मजबूत हो, और जो चैलेंजेस उसको हम फेस करें और इससे हम आगे बढ़े। ठीक है, दिस इज फॉर
तो एक प्रकार से अगले 25 साल के लिए इस बजट के द्वारा क्या रखा गया, फाउंडेशन रखा गया, ये सरकार का कहना है, बाय दिस एफएम का कहना है। ठीक है। नाउ the initiative of last year's budget have been significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well। और जो इनिशिएटिव था, जो 21-22 में रखा गया था, उसी इनिशिएटिव को आगे रखते हुए उसके लिए प्रॉपर जो है एलोकेशन भी किया गया, उसके लिए एडिक्वेट एलोकेशन किया, पैसा रखा गया है कि सोच को हम आगे बढ़ा सकें। The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of pandemic are evident for all। सही बात है। जिस प्रकार से हेल्थ को चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज मिला, जिस प्रकार से कोविड है, ये भी सरकार के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है, और ये हमारे सामने एविडेंट है, और इसके बावजूद भी वी आर प्रोग्रेसिंग, डेवलपिंग एट गुड स्पीड। नाउ the productivity linked initiative in 14 sectors for achieving the vision of आत्मनिर्भर भारत। और ये जो बजट है हमारा, ये जो सरकार का 14 सेक्टर है, उसमें एक प्रकार से उसको अचीव करने के लिए ये एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर एक कदम है। ठीक है, ये जो बजट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आता है, ये बजट बेस्ड है आत्मनिर्भर भारत का बजट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि 60 लाख न्यू जॉब्स, पहला जो है अनाउंसमेंट है कि इसमें, जैसे अभी हमने पढ़ा 9.2% ग्रोथ फर्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई अमृतकाल, 4 प्रायोरिटीज को हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट में। जब मैं पिक्टोरियल पढ़ाऊंगा और जब मैं डिस्कस करूंगा पीपीटी के द्वारा, तब उसको मैं दिखाऊंगा कि ये क्या क्या किस प्रकार से है, तो ज्यादा आसान होगा आपको, आपके लिए समझना। इसके बाद थर्ड में हमने देखा अमृतकाल का कॉन्सेप्ट आया है, उसके लिए जो है विजन रखा गया अमृतकाल। और इसके बाद फिर हमने देखा अभी कि भाई इट इज काइंड ऑफ फोर्थ पॉइंट, 60 लाख न्यू जॉब्स। ठीक है, और एडिशनल प्रोडक्शन जो होगा, 60 लाख नए जॉब को हम आने वाले अगले एक साल में हम 60 लाख नए जॉब देंगे, ये एफएम का कहना, ये अनाउंसमेंट है। एंड एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में 30 लाख करोड़ हम रुपए जो है, मतलब जो है इतना का प्रोडक्शन होगा, ये सरकार का बजट में एक थॉट है। ठीक है, 60 लाख जॉब वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। नाउ towards implementation of new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed। आपको पता है कि एयर इंडिया जो है, जो सरकार की अपनी जो है वो एरोप्लेन और पूरा एक सिस्टम था, हवाई जहाज का जो था, सरकारी हवाई जहाज कह सकते हो, उसे टाटा ने अक्वायर्ड कर लिया है। तो ये जो ट्रांसफर है वो जो है कंप्लीट हो गया है, और ये अब स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा एयर इंडिया के बारे में कि टाटा ने इसे एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, शायद 2200 करोड़ में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट 2200 करोड़ के आसपास में शायद खरीदा है। नाउ देन नेक्स्ट वन, द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ NINL। नाउ सी दिस, नीलांचल नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। NINL, ये इंपॉर्टेंट वन फॉर abbreviation कि what is full form of NINL, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड has been selected। ठीक है, the public issue of the LIC is expected shortly, others too are in the process for 2022-2023। मतलब हम जो है क्या काम कर रहे हैं, कि हम इसे जो है पब्लिक से, सी दिस, ये जो पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं, towards implementation of new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership। मतलब एक प्रकार से वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं कि हमने जो है स्ट्रैटेजी, रणनीति के तहत हम मालिकाना हक जो है हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का किसी और को दे रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझा जाए, सीधे सारे शब्दों में, तो मतलब बेचा जा रहा है, पब्लिक जो सेक्टर की चीजें हैं, जो सरकारी जो कंपनीज है, उसको बेचा जा रहा है। पहला, सबसे पहले जो है एक प्रकार से सरकारी जो एयर इंडिया था उसको बेच दिया गया टाटा को। उसी प्रकार से दूसरा जो बेचने की तैयारी में है वो NINL है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। और इसके बाद LIC के लिए भी जो है
जो आदेश पब्लिक इशू जारी किया जाएगा, निविदा जारी किया जाएगा, और ऐसे कई और भी सारी चीजें हैं जिसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, मतलब पब्लिक से प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा, ये कहा जा रहा है स्ट्रैटेजिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो इसको सीधा सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर किया जाएगा मतलब बेच दिया जाएगा, मालिकाना। सेल का मतलब यही होता है, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 54 में पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व जब किसी दूसरे को चला जाता है, दैट इज सेल। तो ये होगा कि ओनरशिप को हम क्या करेंगे, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, इज इक्वल टू सेल, मतलब बेचा जा रहा है, ये बता दिया गया है, बहुत शॉर्ट में बताया गया है। देन कमिंग टू स्पीच का पैराग्राफ 12 जो इस बजट का है, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, important one, keep it in mind, this NABFID, National Bank for Financing Infrastructure and Development, IMP, keep it in mind. And National Asset Reconstruction Company have commenced their activities, मतलब दो नई चीजों को सरकार ने स्टैब्लिश किया है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट वन, और दूसरा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARC, हैव कमेंस्ड देयर एक्टिविटीज। इन्होंने जो है, इन दोनों उपक्रमों ने क्या किया है, यूनिट्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ये बजट में बताया गया। The Honorable Speakers of Budget 2021-22 have provided a sharp increase in provision for public investment और capital expenditure, और इस बजट में ये प्रोविजन बनाया गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता था, अब सरकार इन्वेस्ट कर रही, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, पर उसको इंक्रीज किया गया इस बजट के द्वारा, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर with the honorable prime minister guiding the implementation, our economy recovery is continuing to benefit for multiplier effect, और इसका जो है लाभ जो है कई अलग अलग स्तरों पे हो रहा है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से, ये कहना है। दिस बजट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड इम्पेटस फॉर ग्रोथ, और ये जो है जिस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है उसको ये सहायता प्रदान कर रहा है ये बजट। इट लेज अ पैरेलल ट्रैक ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ अमृतकाल, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि 4 जो पॉइंट है उसका ये ब्लूप्रिंट है, जो अगले 25 साल के लिए बनाया गया, 2047 के लिए, जो अमृतकाल का एंड होगा जब 2047 में आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, विच इज फ्यूचरिस्टिक एंड इंक्लूसिव। दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट, और इससे किसको फायदा होगा, इस अमृतकाल के इस बजट से, यूथ को, विमेन को, फार्मर्स को, SC को, ST को। कैसे होगा, हाँ ये नहीं बताया गया बजट में, जब आगे पढ़ोगे होगा ये बताया गया है, बट कैसे होगा इसका एक रोड मैप कंप्लीट अभी नहीं है, हो सकता है सरकार अभी बाद में इसके लिए जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए और बताए कैसे कैसे है, बट जो है उन्होंने कहा है कि होगा, अब कैसे होगा उसका भी रोड मैप नहीं है, बट लेटर ऑन हो सकता है कि सरकार इसके साथ जो है बताए कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। एंड टू बिग पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दीज टू जो हमने कवर किया। रीडिंग फॉर इंडिया एट 100, जब देश 100 साल मना रहा होगा आजादी का, दिस शैल बी गाइडेड बाय PM गति शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड अब आया है, जो 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस किया गया तो उसमें है गति शक्ति, आप याद रखें ये, कीप इट इन माइंड, गति शक्ति। एंड बी बेनिफिटेड बाय synergy of multimodal approach, moving forward on this parallel track we lay the following 4 priorities, very very important keyword, कि इस बजट का कीवर्ड सरकार की प्रायोरिटीज क्या है, सरकार की प्रायोरिटीज क्या है, 4 प्रायोरिटीज है, कितने प्रायोरिटीज इस बजट में, इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जाम, 4, what are those 4, see this, very very important, you have to remember these points. Number 1, first priority is PM Gati Shakti will be covering now. Second, inclusive development, सबका समग्र विकास, सबको जिसमें शामिल किया गया हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, इन्वेस्टमेंट निवेश करना, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप वगैरह, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना, तरक्की कर सके। एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करना,
मतलब कोल क्योंकि लिमिटेड है कोल एटसेट्रा, तो कोल एटसेट्रा से पेट्रोलियम से हम जो है क्रूड ऑयल से हम कहां जाएंगे, सोलर सोलर एटसेट्रा में। तो ये एक सरकार की प्रायोरिटीज है। क्लाइमेट एक्शन, मौसम में जिस प्रकार से आए दिन जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो है आपदा आती है, तो इस वजह से क्लाइमेट पे ध्यान देना। और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है एक स्ट्रक्चरल निवेश कर सके, तरीके से हम निवेश कर सके। तो ये चार है, ये है हाइलाइट्स, मतलब आप समझ सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट विजन है सरकार का अभी के लिए। क्या, पीएम गति शक्ति, जिस कामों को प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया, फाउंडेशन किया, वो चल रहा है, उसको और गति देना और उसको मजबूती से बढ़ाना, जितने भी प्रोग्राम है सरकार के द्वारा, पीएम के द्वारा चलाया जा रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट निवेश करना, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, वो डेवलप कर सके, स्टार्टअप वगैरह, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन, और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ अब ये व्हाट इज पीएम गति शक्ति, सो लेट्स डिस्कस पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, इसमें जो है बदलने वाला, कुछ चेंज करने वाला, क्रांतिकारी एक तरीका है, इससे जिससे क्या हो सके, इस पीएम गति शक्ति से जो हमारी इकोनॉमी है उसमें विकास हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सतत विकास। ये सतत विकास क्या होता है कि हम आज तो हम काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को भी हम ध्यान में रखें, फ्यूचर जनरेशन को। ऐसा ना हो कि तरक्की के चक्कर में हम सपोज करो जितने भी हमारे पास फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, फॉसिल जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, जीवों से तैयार ईंधन जैसे हैं, फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, जैसे कोल है, क्रूड ऑयल है, इसको हम आज तरक्की के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में खत्म ना कर दें, मतलब इस प्रकार से यूज करें कि भविष्य के लिए भी कुछ बच जाए। तो पीएम गति शक्ति से क्या होगा, एक ऐसा अप्रोच है, तरीका है पीएम गति शक्ति, पहली बार टर्म यूज किया गया, ये भी एक नया सगुफा आप कह सकते हो जो दिया गया इस बजट में, बट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस वी हैव टू कवर। इससे पीएम गति शक्ति से, इस अप्रोच से क्या होगा, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक तरक्की होगी, और सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कि आज भी लोग विकास करेंगे, कल को ध्यान में रखते हुए, अगले जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, राइट। नाउ द अप्रोच इज ड्रिवन बाय 7 इंजन, और इसमें 7 एक प्रकार से इंजन हैं, मतलब 7 वो तरीका है जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा जो है, वो माध्यम है, बेस है, जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा इसमें आगे बढ़ेंगे। क्या है वो 7 इंजन जो इसको आगे बढ़ाएगा? सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कहीं से भी। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, रोड में आप देख, नेशनल हाईवे से लेके सारी चीजें हैं, और इसमें सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा जो है रोड को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, तो सरकार इसमें डूइंग वेरी गुड। देन कमिंग टू रेलवेज, दूसरा इंजन है रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो 7 चीजें हैं जिसके द्वारा जो है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऑल 7 इंजन विल पुट फॉरवर्ड द इकोनॉमी इन यूनिसन, और इससे क्या होगा, इन 7 रास्तों से, तरीकों से, इन जरियों से क्या होगा, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और एकीकृत किया जाएगा। These engines are supported by complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water sewerage, social infrastructure, ठीक है। और इसको जो है इन 7 को सपोर्ट करने के लिए आईटी है, एनर्जी ट्रांसमिशन है, बल्क वाटर सिवरेज भी इसके साथ साथ जो है इसके साथ होगा या हेल्प करेगा इस 7 इंजन को इस काम करने में, और जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। फाइनली द अप्रोच इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास। ये कैसे संभव है, क्लीन एनर्जी से, और ये पावर्ड है और सबके प्रयास से ये संभव है। द एफर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कैसे हो सकता है, केंद्र सरकार को भी इसमें प्रयास करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना है, और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें रोल प्ले करना है। प्राइवेट सेक्टर कैसे रोल प्ले कर सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, तब हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं, पीएम गति शक्ति के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों?
प्राइवेट कंपनीज जो ज्यादा से ज्यादा यूज जॉब डेवलपमेंट करे, इंटरप्रीन्योर अपॉर्चुनिटीज दे, मतलब काम करने का, बिजनेस करने का, नया नया उपक्रम बनाने का, और स्पेशली यूथ के लिए करे। तो ये जो थॉट है पीएम गति शक्ति, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज अ गुड थॉट, मतलब जो सरकार ने सोचा है बस इसके लिए सरकार काम करे तो इसका बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार से जो है एक इंटेंशन है, जो इंटेंट है ये गुड है पीएम गति शक्ति, लेकिन बस ये है कि सरकार इस पे काम करे। ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार इस पे अच्छे से कंटिन्यूअस तरीके से इस पे काम करे, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम होगा जिस प्रकार से ये सोचा गया है पीएम गति शक्ति। नाउ नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, you see this what I'm covering, it's all are important for your subjective exam, short notes में that can be there। इसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन क्लैट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है। so yes, you have to cover it for all, whether it is entrance exam or for judicial service। now पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, अब ये क्या है, लेट्स मूव इनटू इट। दिस अप्रोच वाज national master plan। The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistic efficiency. It will also include the infrastructure developed by state government as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन। और गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है, इससे हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी को हम आगे अच्छा से अच्छा कर सके, और लॉजिस्टिक माल को ले जाने में कितने हर प्रकार से हम सक्षम हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वाटरवेज हो। ये इस गति शक्ति का एक नेशनल मास्टर प्लान है, और इसमें हम टेक्नोलॉजी का, प्लानिंग का, फाइनेंसिंग का हम इनोवेटिव तरीके से यूज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसे जल्दी से जल्दी से स्पीडी तरीके से लागू किया जा सके। ये सरकार का थॉट है। नाउ देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, the projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned to PM Gati Shakti framework। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है कनेक्टिविटी जो है, जो हमारा ऑलरेडी गोइंग ऑन प्रोग्राम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को क्या किया जाएगा, इस गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ, नेशनल मास्टर प्लान के साथ कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका भी पर्पस वही है, कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, सो द टच स्टोन ऑफ द मास्टर प्लान विल बी वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस मास्टर प्लान का जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, इसका जो उद्देश्य ध्येय है वो क्या है, एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, and logistic synergy among different modes of movement both of people and goods, कि जल्दी से जल्दी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लोगों को पहुंचा सके, कंप्यूट करा सके और ट्रांसपोर्ट कर सके बहुत इफिशिएंट वे में, सेफ्टीएस्ट वे में, और ऑब्वियसली बात है चीपर वे में। ठीक है, दिस विल हेल्प रेज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उससे क्या होगा कि हम अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो लोगों के लिए हो चाहे गुड्स के लिए हो, तो ये हमारे इकोनॉमी को एक्सेलरेट करेगा, डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये थॉट है एफएम का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के इस बजट के द्वारा। नाउ सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस वाज प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देन कमिंग इनटू रोड ट्रांसपोर्ट, PM Gati Shakti Master Plan for Expressways will be formulated in 2022-2023 to facilitate faster movement of people and goods। लोगों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी गुड्स को लोगों को पहुंचाने के लिए एक्सप्रेसवे तैयार किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, जिसका काम यूपी में भी हो रहा है। ठीक है, मेरठ एक्सप्रेसवे आपने देखा, गंगा एक जो है गंगा एक्सप्रेसवे का प्लान है, ग्रीन एक्सप्रेसवे का प्लान है, कई सारे एक्सप्रेसवेज हैं, और सरकार इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए डेटा है वो क्या है, नेशनल हाईवेज नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-2023। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बजट में अनाउंस किया गया है कि 2022-2023 एक साल में जो नेशनल हाईवेज है एनएचआई के द्वारा
जो मॉनिटर किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो नेशनल हाईवेज को सरकार का ये इंटेंट इस बजट के द्वारा कि 25,000 किलोमीटर और ऐड किया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है 25,000 किलोमीटर, इसका मतलब बहुत सारे नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। ये इट इज अ गुड वन। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने 2022-2023 के लिए एक साल के लिए 25,000 किलोमीटर और नेशनल हाईवेज को ऐड किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा परिवहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत अच्छा होगा। दिस इज गुड थॉट ऑफ द गवर्नमेंट। 20,000 crore will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources। और पब्लिक रिसोर्सेज के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए जनरेट किया जाएगा इस काम के लिए। ठीक है, इससे 20,000 करोड़ जनरेट होगा पब्लिक रिसोर्सेज के द्वारा। तो कीवर्ड है ये, कीप इट इन माइंड। 25,000 किलोमीटर जो है 2022-23 में सरकार का ये थॉट है, कितना जो है हम जोड़ेंगे और सड़क इतने किलोमीटर। देन कमिंग टू सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। ठीक है, कि कैसे हम जो है बिना किसी रुकावट के ज्यादा से ज्यादा लोगों को और गुड्स को हम पहुंचा सके एक जगह से दूसरी जगह। इसके लिए सरकार के कुछ प्लान्स है। क्या है वो? द डेटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स विल बी ब्रॉट ऑन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके सामने आ गया। क्या है ये? सी दिस ULIP, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज ULIP? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। क्या ये? डिजाइन्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API है, API है, मीन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड फॉर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू डिफरेंट मोड्स, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, time, assisting just-in-time inventory management, and eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passenger will also be there। तो इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा क्या किया जाएगा? जो मूवमेंट है गुड्स का, सामान का, जैसे आप आज की डेट में सपोज करो कुरियर को ट्रैक करते हो, जैसे सपोज करो अमेजन से सामान खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, तो आपका सामान कहाँ है, डिलीवरी का स्टेटस क्या है, वो सब कुछ पता चलता है। ये तो एक प्राइवेट कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है। सरकार एक ऐसा जो है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म वजह से आप देखते हो अपना, आप सपोज करो कोई पार्सल है स्पीड पोस्ट से आप भेजते हो थ्रू दिस पोस्ट ऑफिस, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसी प्रकार ये तो एक गुड्स के लिए है। अब जो सामान आप भेज रहे हो या वो गाड़ी कहाँ है, वो जिस प्रकार से आप ट्रेन में देखते हो कि आपकी ट्रेन कहाँ है, उसी प्रकार से सरकार के द्वारा क्या तैयार किया जा रहा है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम। और ये एप्लीकेशन के द्वारा होगा, जिससे एक्चुअल टाइम जो है वो पता होगा कहाँ है, कैसे है। इससे कॉस्ट भी कम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, और इससे जो है क्या होगा, टाइम भी सेव होगा। और इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, क्या सामान है, कब आया, कहाँ उतारा गया, कहाँ रखा गया, किसको डिलीवर किया गया, ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। और जो इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि भाई इसमें GST पेड है या नहीं है, इसके लिए एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, यह भी आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ गुड थॉट। और सरकार का थॉट है कि हम इंटरनेशनल लेवल का जो है एक हम क्या बना सके, एक लेवल हम जो इंटरनेशनल लेवल का जो है सिस्टम हम डेवलप कर सके इंडिया के अंदर। ठीक है, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर विल आल्सो बी फैसिलिटेटेड। और इससे लोगों को भी जो है बिना किसी रुकावट के सीमलेसली जो है इंसान एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी परेशानी के पहुंच सकता है। ये सरकार का थॉट है, किसके द्वारा? बाय यूजिंग दिस ULIP, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के द्वारा। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। आपको पता है कि दिल्ली मुंबई का एक हाईवे बनाया जा रहा है, एक्सप्रेसवे है, उसमें जो है गुड़गांव के पास, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, कि वहां जो है कार्गो सेंटर बनाया गया है, कार्गो पार्क जिसे कहते हैं, लॉजिस्टिक। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एट 4 लोकेशन थ्रू PPP। व्हाट इज दिस PPP? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के द्वारा क्या है 2022-23 में अवार्ड किया जाएगा, मतलब लोगों को इनवाइट किया जाएगा कि आप जो है
ऐसे लॉजिस्टिक पार्क बनाने में अपना पैसा लगाओ, सरकार भी पैसा लगा रही है और आप भी पैसा लगाओ, और जो उसमें आप रखोगे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो जो अपना आप उसमें जो फ्रेट है, भाड़ा है, वो दोगे, उससे जो प्राइवेट है उसको फायदा होगा और सरकार को फायदा होगा, और लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान होगा। ये बहुत बड़े लेवल पे होगा, काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये 4 लोकेशन पे होगा, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एट 4 लोकेशन। 4 जगहों पे, देश की 4 जगहों पे क्या बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें हर सब प्रकार के बड़े, मतलब बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन होगा, जहां आप माल को स्टोर कर सकते हो, सेंटर रख रख सकते हो। और ये कैसे डेवलप किया जाएगा 22-23 में, 22-23 में, पीपीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा। राइट नाउ, railways. Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprise, beside taking the lead in integration of postal and railway networks to provide seamless solution for movement of parcel। पार्सल के लिए क्या किया गया, रेलवे को और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, और चीजों को पहुंचाने के लिए छोटे किसानों को, मंझले किसानों को, और जो इंटरप्राइज, जो उद्यमी है, काम कर रहे हैं, उनके सामान को पहुंचाने में, पार्सल को पहुंचाने में, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी रुकावट का जो है, वो पोस्टल और जो रेलवे गुड्स है उसको रेलवे के द्वारा आसानी से पहुंचाया जाएगा। इसके लिए काम किया जा रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अभी तक आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट यूपी में चलाया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसा था, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट वन नेशन ऐसा था, वन नेशन वन प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट था। एक नया कॉन्सेप्ट आया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विल बी पॉपुलराइज्ड टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स के लिए, मतलब उसको स्पेसिफिक दिया जाएगा कि इस बड़े प्रोडक्ट के लिए ये एक डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप उसको रख सकते हो, और इसके बाद यहाँ से जहां कहीं भी आपको भेजना है, उस पर्टिकुलर जो है स्टेशन से आप भेज सकते हो। सरकार का एक नया एक थॉट है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, कीप इट इन माइंड। नाउ द नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जिसपे ये बेस्ड है पूरा बजट, 2000 किलोमीटर नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच, the indigenous world class technology for safety capacity augmentation in 2023, 400 new generation Vande Bharat trains with better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during next 3 years। So अब रेलवे का आपने अभी तक क्या देखा, रेलवे पार्सल वगैरह में कुछ अच्छा काम करेगी, जैसे आपने देखा कि रेलवे के लिए कहा गया है कि भाई लॉजिस्टिक सर्विसेज को इफिशियंट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, गुड्स है पार्सल से, इससे किसानों को फायदा होगा, छोटे किसानों को, और उद्यमी को, छोटे और मंझोले उद्यमी को फायदा होगा। इसके अलावा जो है, इससे क्या होगा, पार्सल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ऐसा काम किया जाएगा रेलवे में। दूसरी बात है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट रेलवे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और तीसरा है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रेलवे नेटवर्क में 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन और बिछाई जाएंगी, ऐड किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर हमने नेशनल हाईवे में देखा, सरकार का थॉट है कि 22-23 में 25,000 किलोमीटर और नेशनल हाईवेज को एक्सपेंड किया जाएगा, रेलवे में 2000 किलोमीटर रेलवे लाइंस और ऐड की जाएगी, गुड वन, ठीक है, अंडर आत्मनिर्भर भारत कवच में से शामिल किया जाएगा। और ये जो 2000 किलोमीटर जो रेलवे नेटवर्क होगा, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी से बना हुआ होगा, सेफ्टी होगा, सारी चीजें होंगी इसमें, सरकार का कहना है। नाउ इसके अलावा रेलवे में और क्या है, 400 न्यू जनरेशन, नए जमाने की क्या किया जाएगा, वंदे भारत ट्रेन को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। और अगले 3 साल में, इसे 3 साल में चलाया जाएगा, 3 साल का प्लान है, 1 साल के लिए नहीं है ये, कि 22-23 के लिए नहीं है। तो आप इसे जो है 22 से अगले 3 साल के लिए कहा गया है कि इसमें चलाया जाएगा, इसे राइड किया जाएगा, और इसके बाद जो है इसे मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा अगले 3 साल में। So yeah, this is an important news. 2000 किलोमीटर, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज विल बी डेवलप्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर। और इस प्रकार से 100 क्या किया जाएगा, 100 कार्गो टर्मिनल जो है ये डेवलप किया जाएगा स्टेशंस में, जिससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सामान को ले आने में लोगों को बहुत आसानी होगी। ये एक प्लान किया गया है। तो कितने बनाए जाएंगे, 100 कार्गो टर्मिनल, और ये किसके अंतर्गत है, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है। नाउ देन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कनेक्टिविटीज टू रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्वतमाला, ये रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये इसमें सरकार का एक थॉट है। अब इसमें देखते हैं रोपवे। ठीक है, रोपवे में भी सरकार सोच रही है कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे फ्रांस देख लो, स्विट्जरलैंड देख लो, जहाँ पे हिली एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां रोपवे के द्वारा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है और सामानों को पहुंचाने में, गुड्स को पहुंचाने में आसानी होती है। तो सरकार का ये एक थॉट है कि जो पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है, हम वहाँ रोपवे बनाएंगे और उसमें हम काम करेंगे। गुड वन, गुड थॉट है। एज अ प्रेफर्ड इकोलॉजी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड इन डिफिकल्ट हिली एरियाज, जहां रोड बनाना, जिन पहाड़ों को काट कर या टनल बनाना टिपिकल है, ज्यादा खर्चीला भी है, तो वहां सरकार लोगों के आने जाने के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए क्या करेगी, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी, रोपवे का जो है, और इसे दिया गया पर्वतमाला। ठीक है, जहां डिफिकल्ट एरियाज है, जहां आना जाना मुश्किल है, और जहां मतलब जो है रोड बनाना टिपिकल है या रेलवे लाइन बिछाना टिपिकल है, वहां के लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये तैयार किया जाएगा। और किस बेसिस पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होगा। द एम इज टू इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कम्यूटर्स बिसाइड्स प्रमोटिंग टूरिज्म। टूरिज्म के अलावा भी लोगों का आमदनी में आने जाने के लिए इसको प्रमोट किया जाएगा, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को। This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible। जहां ऐसा लग रहा है कि एक साथ ज्यादा लोगों को कंजेशन की वजह से, ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से, जो शहरी इलाके में रोड वोड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पॉसिबल नहीं है रेलवे लाइन बिछाना, वैसे जगह मेट्रो पॉसिबल नहीं है, ये ज्यादा खर्चीला है, कॉस्टली है, तब यहाँ ये रोपवे बनाया जाएगा। गुड थॉट है, इट इज अ गुड थॉट ऑफ द, जहां ये फिजिबल नहीं है एक साथ लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वहां रोपवे बनाया जाएगा, ये सरकार का कहना है। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर विल बी अवॉर्डेड इन 2022-2023। 2022-23 में एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेटा है कि 60 किलोमीटर रोपवे जो है वो बनाया जाएगा। और ये कितने होंगे, इसके ये 8 जगहों पे होगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 रोपवे, और ये 60 किलोमीटर में 8 रोपवे प्रोजेक्ट होगा, मतलब 8 जगहों पे होगा। तो टोटल कितने हैं 2022-23 के लिए, 8 रोपवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये स्ट्रेच क्या होगा, इसका एरिया होगा 60 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स with technical support from the capacity building commission, central ministries, state governments and their infra agencies will have their skill upgraded। ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि उनके लोगों को जो है, जो एजेंसीज है, उसके स्किल को डेवलप किया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। दिस विल रैंप अप कैपेसिटी इन प्लानिंग। इससे क्या होगा, जो अधिकारी ऑफिसर से काम करने वाले, प्लानिंग, डिजाइन, फाइनेंसिंग, इंक्लूडिंग इनोवेटिव वेज एंड इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट ऑफ पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने, बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसे बनाया जाए, जल्दी से जल्दी कैसे उसे कंप्लीट किया जाए, उसके लिए काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड सेगमेंट में, और ये बेस्ड है, this is based on
एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चरल बेस्ड, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री भी है। तो इसमें एक ड्रोन से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और इसमें कुछ की पॉइंट्स भी हैं, जिसमें से केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग्स हैं, और इसके बाद ये कहा गया है कि हम इसे जो है ड्रोन्स के द्वारा जो है हम ड्रोन्स को डेवलप करेंगे, और ड्रोन के द्वारा लोग जो क्या कर सकते हैं, अपने खेती में ड्रोन का यूज कर सकते हैं स्प्रेइंग वगैरह करने में। सो एक अच्छा एक थॉट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में। सो ये एक अलग पूरा सेगमेंट है और इम्पोर्टेंट वन है। सो लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में क्या है। नाउ सबसे पहला, द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन रवि 21-22। कितना प्रोक्योर किया हमने रवि के सीजन में, रबी फसल को हमने 2021-22 में सरकार ने कितना प्रोक्योर किया है, खरीदा है। ठीक है, नाउ सो सरकार ने 2021-22 में जो रबी फसल को खरीदा था, गेहूं, रबी फसल में गेहूं को खरीदा था, और खरीफ में जो पेडी में मतलब खरीफ सीजन में 21-22 में खरीफ फसल में जो धान की खरीदारी की थी, वो विल कवर 1208 लाख मेट्रिक टन, 1208 लाख मेट्रिक टन उन्होंने जो है गेहूं खरीदा सरकार ने किसानों से, और 163 लाख, और जो है 1208 लाख मेट्रिक टन गेहूं और चावल, पेडी, धान, ये खरीदा था। ठीक है, कितने लोगों से? 163 लाख फार्मर से, 163 लाख किसानों से 1208 लाख मेट्रिक टन गेहूं और धान को सरकार ने खरीदा था। ठीक है, एंड 2.3 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी वैल्यू टू देयर अकाउंट्स, और 2.37 लाख करोड़ रुपए जो है डायरेक्ट पेमेंट किया गया है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैल्यू के अनुसार उनके किसानों के अकाउंट्स में दिया गया। तो सरकार जो एमएसपी का जो इशू चल रहा है किसानों के साथ, उसमें सरकार का जो डेटा दिया है इस बार बजट में, उसने ये कहा है कि 2021-22 में हमने जो है किसानों से रबी सीजन में गेहूं की जो हमने खरीदारी की है, और खरीफ सीजन में खरीफ फसल के रूप में जो हमने जो धान की खरीदारी की है, वो 1208 लाख मैट्रिक टन है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 1208 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, और इसके लिए कितना पेमेंट किया सरकार ने? 2.3 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किया है ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पे जो है, जो तय है उसके आधार पे उन्होंने किसानों से खरीदा है। और कितने किसानों से खरीदा है? 163 लाख किसानों से खरीदा है, ये सरकार ने डेटा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। नाउ एग्रीकल्चर में दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा एग्रीकल्चर में अनाउंसमेंट है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब आप ज्यादा जो है जो आप कह सकते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फार्मिंग करें, ज्यादा हम जो है ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप केमिकल ज्यादा यूज ना करें। सो सरकार का ये थॉट है कि केमिकल फ्री जो है फार्मिंग किया जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सरकार का बढ़ावा है पूरे भारत में, और इसके लिए जो है सरकार फोकस है फार्मर्स पे। फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग रिवर गंगा एट द फर्स्ट स्टेज, और गंगा के किनारे जो 5 किलोमीटर का जो चौड़ा एक कॉरिडोर है, उसमें इस प्रोग्राम को जो है लागू किया जाएगा। कि वहाँ ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग के द्वारा सरकार फैसिलिटेट भी करेगी, सहायता प्रदान करेगी कि जो किसान है गंगा के किनारे 5 किलोमीटर की चौड़ाई में, जितने भी किसान गंगा के फर्स्ट स्टेज में जो आसपास रहे जिनका खेत है, तो वहां जो है ये केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग कर सके, ये सरकार का थॉट है। ठीक है,
2023 हैज बीन अनाउंस्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान के चलो, मैं कहता हूं कि यू विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। कोई भी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यू विल बी हैविंग दिस कि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जो है हम सेलिब्रेट करेंगे 2023 को। ये सरकार ने अनाउंस किया है कि 2023 जो है वो कैसा साल होगा, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। प्लीज ध्यान में रखना, जो है हम एक हमेशा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस इस बार जो है, इस बार सरकार ने जो है मिलेट को जो है क्या माना है कि इस बार हमारा जो है वो 2023 को हम सेलिब्रेट करेंगे बाजरा। मिलेट को बाजरा कहते हैं, ठीक है, फसल है बाजरा। इस फसल के रूप में जो है इस ईयर को हम सेलिब्रेट करेंगे 2000। तो मतलब बढ़ावा दिया जाएगा मिलेट्स को, कहने का मतलब ये है, सरकार का ऐसा थॉट है। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, हो जाने के बाद कि ज्यादा से ज्यादा इसके लिए वैल्यू दिया जाए किसानों को। इनहैंसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें घरों में, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है मिलेट, ठीक है। एंड फॉर ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली, और देश में और विदेश में इस प्रोडक्ट को, मिलेट को, बाजरा को जो है हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है ये स्टार्ट। तो इसलिए हम इसे जो है बढ़ाएंगे, ये सरकार का थॉट है। नाउ टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है, हम ऑयल सीड्स पे जो जितने भी तिलहन है, जिन बीजों से तेल निकलता है, उस पे हम जो है हम जिसको आयात कर रहे हैं उस आयात को हम कम करेंगे, अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा हम उसे तैयार करेंगे, उसकी खेती करेंगे। और रैशनलाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स को लागू किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम जो है तिलहन को भारत में पैदा कर सके, इस पे काम किया जाएगा। ये सरकार का थॉट है एग्रीकल्चर में इस बार बजट में। फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स with involvement of public sector research and extension institution along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chain, a scheme in PPP मॉडल विल बी लॉन्च। मतलब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती को जो है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती जो है किसान करे, इस बात की जो है सरकार जो है ध्यान में रखेगी। और इसके लिए प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन को जो जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो जो है इसको उसमें सामने लाएगी, और इससे लोग जो है इस स्कीम को लागू करेंगे। और इस स्कीम में जो है पीपी मॉडल होगा, पब्लिक प्राइवेट मॉडल होगा, जिसपे जो है लोग अपना पैसा लगाएंगे, और जो है हमारा जो खेती है वो कैसा हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ये सरकार का थॉट है। नाउ देन इंपॉर्टेंट वन, यूज ऑफ यूज ऑफ किसान ड्रोन्स, न्यू कॉन्सेप्ट है कि आप किसान जो है अपनी खेती में ड्रोन का यूज करें। विल बी प्रोमोटेड, सरकार इसको प्रमोट करेगी फॉर क्रॉप असेसमेंट, ऊपर से देखने के लिए पूरे बड़े एरिया में कि कैसा आपका खेती जो है वो फसल कैसा हो रहा है, तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमी है, क्या है। तो ऊपर के अगर आप ड्रोन से देखते हो, ड्रोन कैमरा से, तो पूरे एरिया को आप ऊपर से अच्छे से बर्ड आई व्यू में देख सकते हैं। जैसे बर्ड आई व्यू मतलब जैसे पक्षी ऊपर से देखते हैं तो सारा नजर आता है, तो उस प्रकार से हम जो है उसे अपने फसल को देखें, असेस करें कि सही पैदावार है या नहीं है, कुछ कमी है या बीमारी है फसल में, ये चेक करने के लिए, तो किसानों को फायदा होगा इससे। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन को भी सही तरीके से जो है डिजिटली हम जांच परख कर सके। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और जो इंसेक्टिसाइड जो कीड़े पतंगों को मारने के लिए यूज किया जाता है, उसका भी स्प्रे हम उससे कर सकें, मतलब कम टाइम में, जो इंसान खुद से मैनुअली करता है ड्रोन के द्वारा जल्दी से जल्दी हो सकता है और कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व उसमें दिया जाता है, उन सारी चीजों के लिए यूज किया जा सके ड्रोन, किसान ड्रोन, तो किस ड्रोन का यूज किया जा सके, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नए नए टर्म्स है, इन टर्म्स को जानना जरूरी है, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, इन दिस वन,
states will be encouraged to revise syllabi of agriculture universities to meet the needs of natural. Now see this, जो जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक, उनके लिए है कि वो अपने सिलेबस को रिवाइज करें और जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें नेचुरल, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन मैनेजमेंट को अपने सिलेबस में ऐड करें, ताकि इससे किसानों को फायदा हो सके। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं जो बाद में खेती किसानी करते हैं, उनको जो है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके अपने फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में। ये सरकार का थॉट है। देन a fund with blended capital raised under co-investment model will be facilitated through NABARD। NABARD के द्वारा क्या किया जाएगा, जो कैपिटल है वो उसमें ब्लेंड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्राइज रिलेवेंट टू फार्म प्रोडक्ट वैल्यू चेन, ताकि जो उनके किसानों के अपने प्रोडक्ट है, फसल है, उसको जो है हेल्प मिल सके। द एक्टिविटी फॉर दीज स्टार्टअप विल इंक्लूड इंटर एरिया सपोर्ट ऑफ एफपीओज, machinery of farmers on rental basis at farm level, technology including IT based support। और जो बड़े बड़े उसे जो है अगर औजार चाहिए या कुछ ऐसा एग्रीकल्चर बेस्ड इक्विपमेंट चाहिए, तो वो उसे रेंट पे भी मिल सके और उसके लिए वो खरीद सके। ये सारे स्कीम जो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा नाबार्ड के थ्रू, ये किसानों को मिलेगा। ये एक थॉट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि 1 आवर के आसपास का वीडियो हो गया है। अब अगले वीडियो में विल बी कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विल बी कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द budget with you guys. So thank you and wait for the next video. We'll be having remaining part of the budget. Thank you.